اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں عرض کر دوں میری گفتگو کے جو دیا گیا وقت ہے اس میں 4 حصے ہیں۔ سب سے پہلے اظہار تشکر ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، سرگرمیاں جو یقیناً ایک نسل نو کی زندگی کو ڈائریکشن دینے میں اپنا اہم کردار، اپنا رول ادا کرتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک ایکٹیویٹی یہ ہے جس میں ہم شریک ہیں، اور اس کا کریڈٹ ڈاکٹر ہارون عثمانی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، خصوصاً شاہزیب خان صاحب جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، جاتا ہے۔ اور یقیناً زندہ قوموں کی یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ مختلف ایشوز ڈسکس کرتے ہیں، پھر وے آؤٹ نکالتے ہیں اور مستقبل کی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ مجھے یہ جو سوال جواب ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کرنا ہوتا ہے، مجھے ظفر اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا تھا: خود کو ترتیب دیا آخر کار اثر نو، خود کو ترتیب دیا آخر کار اثر نو، زندگی میں تیرا انکار بہت پسند آیا۔ یہ جو رائے کا اختلاف ہے یہ حسن ہے، اسی سے قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں کئی سالوں سے بین الاقوامی تصوف کانفرنس بھی ہو رہی ہے، مختلف پروجیکٹس پر کام بھی ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم اکرام صاحب کا نام بڑا معروف ہے، ڈاکٹر جہانگیر تمیمی صاحب کا نام معروف ہے، پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب کا۔ پچھلے 2 سالوں میں نے بھی 2 ریسرچ پروجیکٹ کیے: حیات مشائخ چشت میں سماجی بہبود کی جہاد، اور دوسرا تھا مشائخ سہروردگھ اور سماجی بہبود کی متنوع جہاد۔ اسی طرح اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے اظہار تشکر کے بعد، وہ کتاب کا تعارف ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، اس وقت یہ موجود نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے کہیں بھی، لیکن PDF میں موجود ہے، تو وہ اگر آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ شعبہ تحقیق و اشاعت، محی الدین اسلامک یونیورسٹی نہریاں شریف، آزاد کشمیر سے یہ شائع ہوئی تھی، اور پیر علاؤالدین صدیقی صاحب اس کے رہنما ہیں، اور اس کے بانی وائس چانسلر جو ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب ہیں۔ انہوں نے ایک سیمینار کروایا تھا جس میں نامور شخصیات بنائی۔ اس کتاب میں حرف سپاس اور افتتاحی کلمات کے بعد ٹوٹل 21 ریسرچ آرٹیکلز ہیں جو مختلف نامور اور ممتاز اہل علم و دانش کے ہیں۔ ان میں تصوف کی ماہیت، حقیقت، اہمیت اور مقامات کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن کتاب کا جو موضوع ہے تصوف تلاش احسن کی ہماگیر تحریک، اس پر براہ راست جو آرٹیکل شامل ہیں وہ 6 اس موضوع پر۔ اس کے علاوہ متعدد صوفیاء اعظام، مثلا خواجہ اجمیر، خواجہ بہاؤالدین نقشبند، خواجہ محمد پارسا نقشبندی، پیر سید مہر علی شاہ، خواجہ معین الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی تعلیمی اور تبلیغی مسائل بھی بیان کی گئی ہیں۔ تیسرا جو حصہ ہے گفتگو کا، وہ عنوان کی وضاحت ہے۔ یہ بڑا دلچسپ حصہ ہے اور نوجوانوں کے لیے، خصوصاً جو ہمارے طلبہ و طالبات ہیں ان کے لیے، تصوف تلاش احسن کی ہماگیر تحریک۔ اس میں 3 حصے اس کے بنتے ہیں: تصوف، تلاش احسن اور ہماگیر تحریک۔ تصوف کیا ہے، تلاش احسن کیا ہے، اور پھر ہماگیر تحریک یہ کیسے؟ اختصار کے ساتھ میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں، اور تصوف یاد رکھیں ایک دلچسپ بات ہے، یہ تحرک سے عبارت ہے، اور ہم نے اسے فی زمانہ رسم کے ڈھانچے میں جمود کا شکار کر دیا ہے۔ صوفی اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں تو وہ ذہن کو ایک کال کوٹری سے نکال کر دوسری کال کوٹری میں بند نہیں کرتا، جس طرح مولوی کرتا ہے یا مفتی کرتا ہے، بلکہ وہ منو کے جھگڑوں سے آزاد اور بے نیاز کر کے آفاق کی وسعتوں سے آشنا کرتا ہے۔
یہ ہمیشہ صوفی کا کردار رہا ہے ہر دور میں. پریکٹیکل صوفی ہیں میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ صوفی اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے. بھلا مسافر کو بھی کسی سے دشمنی پالتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ نہ وہ کسی سے الجھتا ہے نہ جھگڑتا ہے اور جمود و جدال کے بغیر آگے بڑھتا رہتا ہے اور اپنا سفر جاری رکھتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو ایک جگہ رہتے ہیں وہ جھگڑتے ہیں اور یہی حال ایک جگہ پر رکی ہوئی سوچ کا ہوتا ہے. جس سے فتوے جنم لیتے ہیں، فساد جنم لیتا ہے اور سوچ چلتی رہے، ڈسکشن ہوتی رہے، اختلاف رائے سامنے آتا رہے، حل نکلتا رہتا ہے. اور جب بندہ انفرادی ایک خول کے اندر جو ہے بند ہو کر رہ جائے تو اس سے پھر فتوے اور فساد جنم لیتا ہے. تو صوفی کا بہرحال یہ کردار ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ ایک بات دلچسپ ہے کہ تحرک جو ہے، جمود اور تحرک، اس میں فرق ہے. جمود میں تقدر ہوتا ہے، تقدر کے اوپر گدلا ہو جانا، پانی کس طرح ہو جاتا ہے. اور تقدر میں انقباض ہوتا ہے، چیزیں جم جاتی ہیں، مکس ہو جاتی ہیں. اور تحرک میں صفا ہوتا ہے، صفائی. اور صفا میں انبساط ہوتا ہے، خوشی. سرکولیشن آف بلڈ ہوتا رہے، چلتا رہے تو چہرہ کھلا کھلا ہے. اور اگر چیزیں آ جائیں اس طرح کی جو رکاوٹ بنے تو انسانی زندگی جو ہے وہ داؤ پر چلی جاتی ہے. یہ بات بھی ذہن میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ کھڑا ہوا پانی بدبو دار ہو جاتا ہے. حیف تو اس بات پر ہے جس کی سوچ ایک جگہ ٹھہر جائے، اس کا کیا بنے گا. صوفی نہ کسی کی جہالت میں الجھتا ہے، نہ کسی کو اپنی جہالت میں الجھاتا ہے، نہ کسی کے زہد و ورع سے وہ حسد کرتا ہے، نہ وہ اپنے زہد و ورع پر غرور کرتا ہے. یہ بیسک صوفی کا کردار ہوتا ہے. اوورآل آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے اور اس کا ایک ہی کیوں الجھتا نہیں ہے، کیوں جھگڑتا نہیں ہے، اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ صوفی کی نظر دنیا اور ما فیہا پر نہیں ہوتی. اس کی نظر کل یوم ہوا فی شان کی تجلی پر ہوتی ہے. ہر لمحہ نیا طور، نئی بن کے تجلی. اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے تو اس منزل سے گزرنے والا ہوتا ہے. اس لیے وہ بغیر الجھے الجھائے چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. اور چلتے چلتے واصل بحق ہو جاتا ہے اور زبان حال سے یہ کہتا ہوا گزر جاتا ہے، بس ایک منزل ہے گل ہوس کی، ہزار رستے ہیں اہل دل کے. یہی تو ہے فرق مجھ میں اس میں، گزر گیا میں ٹھہر گیا. یہ تصور. دوسرا حصہ اس کا تلاش آسان. اب یہ ایک بات بڑی دلچسپ ہے نوجوان نسل کے لیے، خصوصاً میرے اساتذہ جیسی ہستیاں یہاں پر موجود ہیں. یہ جسارت ہے لیکن بہرحال ڈیوٹی ہے اور میرے لیے یہ سعادت ہوگی. مجھے پھر ایک شعر یاد آ رہا ہے، کتنے لمحے ہیں جنہیں پھر سے بسر کرنا ہے، عمر رفتہ تجھے ڈھونڈ کے لائیں کیسا. یہ جو لمحے ہوئے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً یہ قیمتی لمحات ہیں جس میں سیکھنے کا عمل اور ذہن سازی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. یہ ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جس نے یہ عنوان تجویز کیا. اتنا خوبصورت عنوان، تصوف تلاش احسن کی ہماگیر تحریک. اب تلاش احسن کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں احسن کا لفظ مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے. ایک سورہ مومنون میں غالباً جب اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے سارے مرحلے، آدم علیہ السلام اور پھر پانی کی بوند، جمع ہوا خون، پھر گوشت کا روتھڑا، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی جانا، پھر جلد چڑھانا، یہ سارے مرحلے اللہ نے بیان کر کے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہم نے اس میں روح پھونک کر اسے ایک نئی مخلوق بنایا. بس اللہ برکت والا ہے اور سارے خالقوں سے بڑھ کر زیادہ حسن والا خالق ہے. احسن کا لفظ یہاں استعمال. دوسرا، جس طرح رب نے اپنے لیے احسن الخالقین کہا ہے، اس نے حضرت انسان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
तीसरा लफ्ज जो है ये इस्तेमाल हुआ सूरह मुल्क में। तो अगर मुझे इसको समेट लूँ इजाज़त दे तो तलबा और तालिबात के लिए कि याद रखें कि अल्लाह खालिक हुस्न है, इस्लाम दीन हुस्न है, और वो खालिक हुस्न के साथ साथ तालिब हुस्न भी है। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कि मौत और हयात उसने इसलिए तख्लीक की है कि वो आजमाना चाहता है कि तुम में से कौन है जो हुस्न के बड़े मेयार पर जा सकता है, हुस्न की अगली मंजिल की तरफ सफर कर सकता है। तो ये एक दिलचस्प बात है। तो इस्लाम दीन हुस्न है इस हवाले से। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये एक दिलचस्प बात है, वो मंबाओ मखज़नो मस्दरो मबदाए हुस्न। वो आज़म चिश्ती का मुझे शेर याद आ रहा है, समझा नहीं हनूस मेरा इश्क बेसबाब, तो कायनात हुस्न है या हुस्न का। तो ये एक दिलचस्प बात है। ये अगर आप इसके आर्टिकल्स पर नजर करते हैं, उससे पहले तिलाशी एहसन की मैंने बात कर दी, फिर हम आगे बढ़े। कोई भी ज़माना तसव्वुफ से खाली नहीं रहा। फिर तज़किया और एहसान फ़राइज़ नबूवत जो है वो चार हैं। तिलावत आयात है, तज़किया नफूस है, तालीम किताब है, तालीम हिकमत है। ये फ़राइज़ नबूवत थे, अपने अपने दौर में ये इल्म थे। इल्म जब फ़न बने वो एक्सपेंड हुए। जिस तरह जो तालीम तिलावत आयात थी उससे कारी, मुकरी, मुजव्विद, तजवीद के एक्सपर्ट, ये पूरे का पूरा एक शोबा एक्सपेंड हुआ। इसी तरीके से हम देखते हैं तालीम किताब तज़किया में, तज़किया की तरफ मैं बाद में आता हूँ। तालीम किताब मुफस्सिरीन के कितने तबकात हैं, तफसीर की कितनी किस्में हैं। इल्म जब फन बनता है तो फिर उसमें फैलाव आता है। तो वो आया इसी तरह तालीम हिकमत हदीस में आप देख लें, मुहद्दिसीन आए, फिर तबकात मुहद्दिसीन हैं, फिर हदीस की किताबें हैं, फिर अस्मा और रिजाल है, फिर जरह और ताज़ील, ये मुख्तलिफ उलूम है हदीस से मुतल्लिक़। इसी तरह तज़किया और एहसान भी एक फर्ज नबूवत था। जब ये इल्म फन की शक्ल इसने इख्तियार की तो इसे ये तसव्वुफ के नाम से मारूफ। और सिहाबी से बड़ा कोई लक़ब नहीं था, इसी तरह ताबी और तबा ताबी से बड़ा कोई शर्फ नहीं था, इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना हो। सबसे पहले अबू हाशिम कूफी के नाम के साथ ये लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हुआ। 150 के करीब इनकी तारीख़ विलादत है या तारीख़ वफ़ात इनकी। अबू हाशिम कूफी पहला सूफी जिन्हें कहा जाता है। तो ये तज़किया और एहसान कहें, तसव्वुफ कहें, बहरहाल ये इंसानी ज़रूरत है। वो अल्लामा का शेर मुझे याद आ रहा है, अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गवास को मतलब है सदफ से कि गौहर से। अब देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी वो बड़ी मुनफरिद दुआ थी कि ए अल्लाह, ए मेरे रब, इनमें एक अज़मत वाला रसूल भेज जिसकी चार सिफात हों। यतलू अलैहिम आयातिका, तेरी आयात पढ़कर सुनाए, व युअल्लिमुहुम किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम दे, और व युज़क्कीहिम, तज़किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रब ने दुआ हूबहू कबूल की, लेकिन तरतीब बदल दी। तरतीब क्या है कि अल्लाह ताला ने अज़मत वाला रसूल भेजा। पहला उसका फर्ज क्या है? तिलावत आयात। दूसरा फर्ज है तज़किया नफूस, फिर है तालीम किताब, फिर है तालीम हिकमत। इसलिए कि जब तक तज़किया नफूस ना हो, दिलों को पाक ना किया जाए, तो हिकमत कैसे ठहरेगी? उलमा ने कितनी हसरत से कहा था, ये हिकमत मलाकुती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये ज़िक्र नीम शबी, ये बुराक में ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा, तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज कौन सी चीज़ की कमी है? सारे ज़राए हैं लेकिन अमल नहीं है, क्योंकि तज़किया नफूस नहीं है। बेसिक चीज़ ही हमने बढ़ा दी, और जब ये भूल जाए तो फिर उसके बाद हदीस पढ़ने वाला भी फतवा लगा रहा है, कुरान पढ़ने वाला भी, तौहीद का मतलब वाला भी, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावेदार भी, मोहब्बत सहाबा का अलमबरदार भी, एहतराम अहले बैत का दाम भरने वाला भी,
یہ تو دین تو نہیں تھا. بہرحال یہ موضوع نہیں ہے, کسی موقع پر اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ تلاش احسن کی ایک ہماگیر تحریک, یہ رب کی طلب ہے خود, اور صوفی حسن کا متلاشی ہوتا ہے, بہتر سے بہتر کی طرف ہوتا ہے. علامہ نے کہا تھا ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. تو یہ تو ہے. اور دیکھیے اللہ نے اتنا حسن پسند ہے, اللہ وہ نیکی کو حسنہ کہتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, جو حسن کے معیار سے گر جائے وہ برائی ہے. اور رب نے یہ بھی فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, کہ جو حسن والے عمل کو حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے ہم اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں. کائنات ہے ہی حسن, ہم نے اس میں تخریب کر کے جو ہے اس کا حسن بگاڑ دیا ہے. رنگوں کا آپ اختلاف دیکھیں وہ حسن ہے, لیل و نہار کا اختلاف حسن ہے. اسی طرح علاقے کا, موسموں کا, تو رائے کا اختلاف کیسے حسن نہیں, یہ بھی حسن ہے. اور یہ اس حسن کو آگے بڑھانا چاہیے تھا, ہم نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے لیے استعمال کیا. بہرحال یہ 3 لفظ ہیں, تصوف, تلاش احسن, ہماگیر تحریک. اور کوئی زمانہ بھی تصوف سے خالی نہیں تھا. سب سے پہلے صوفی امت میں اگر صوفی کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلا صوفیانہ جملہ صدیق اکبر کی زبان سے ادا ہوا جب حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو, تو انہوں نے کہا تھا میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا. یہ پہلا تصوف کا جملہ ہے. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, کیونکہ وقت کی تنابیں جو ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں, اس لیے اختصار کے ساتھ اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں. پہلا آرٹیکل جو نہایت جاندار آرٹیکل ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب کا. اتنا خوبصورت آرٹیکل ہے, اس کے ایک آرٹیکل پر کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے بلا مبالغہ. لیکن وقت کے ساتھ مناسب جو ہے, وقت کے حساب سے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. مثلاً وہ فرماتے ہیں, جملے سنیں, روح مرکز حیات, اس لیے اس کے تقاضے مقدم ہوتے ہیں. ہمارے ہاں روح کے تقاضے مؤخر ہو گئے, جس وجہ سے سارے کے سارے مسائل پیدا ہوئے اور ہر آدمی پریشان ہے. یہ مشینی دور ہے. وہ اقبال نے کہا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات. ہم عجیب ایک کیفیت میں مبتلا ہیں. تو روح مرکز حیات ہے. شاہ ولی اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر 2 کیاریاں ہوں, ایک پھولوں کی اور ایک کانٹوں کی, کانٹوں والی کیاری کو آپ پانی دیتے رہیں اور پھولوں والی کیاری کو چھوڑ دیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جھاڑیاں جوان ہو جائیں گی اور پھول کے پودے جو ہے وہ جل جائیں گے, بنجر ہو جائے گی. ہماری بھی کچھ یہی کیفیت ہے. ڈاکٹر صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ اگر شعر کے جامع میں کہے تو ہم کہہ سکتے ہیں سوچو تو سنبٹوں سے بھری ہے تمام روح, دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس. اور یہ بھی وہ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے جو جس طرف اشارہ کیا ہے کہ جسم کے ایک آرگن کو سمجھنے کے لیے کم و بیش 30 سال لگتے ہیں. میڈیکل کے لوگوں سے آپ پوچھیں, MBBS کریں, ہاؤس جاب کریں, پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن کریں, ایک آرگن کو سمجھنے کے لیے 25 سے 30 سال کی عمر تک آدمی پہنچتا ہے. تو یہ ایک آرگن جو ہے اس میں تو رزق خواب بننا ہے. تو جس کے اوپر موت آنی ہی نہیں ہے اسے روح کہتے ہیں. علامہ نے کہا تھا یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مر کے بدن سے, چمک کیا سورج میں باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے. تو جس نے ہمیشہ رہنا ہے اس کو ہم 30 سیکنڈ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ جسم کے تقاضے روح کے تقاضے کے ماتحت ہونے چاہیے. روح سوار ہے اور جسم سوار ہے. سواری کی دیکھ بھال ضروری ہے لیکن عظمت اور سربلندی سوار ہی کو حاصل ہوتی ہے. دوسری بات انہوں نے کی معاشرتی زندگی کے ضوابط. علم فقہ کا موضوع ہے جبکہ تہذیب باطن کے اصول و قواعد علم تصوف کا, جن میں تعاون و توازن از حد ضروری ہے. پھر اسلام کو وہ کہتے ہیں کہ اسلام دین احسان ہے.
आप देख ले, हुस्न का लफ्ज, एहसान का लफ्ज। और समाजी जिंदगी में देखें ना, सबसे ज्यादा हमारे जो बड़े मुस्लिम थे वालिदैन, रब ने वालिदैन के लिए क्या फरमाया, वबिल वालिदैन एहसान। डॉक्टर साहब ने इसे जो है उजागर किया, वाज़ेह किया। और बड़ी अहम बात है कि माँ बाप हमारे साथ जितना उसमें सलूक करते हैं, क्या हम उसका बदला दे सकते हैं? अदले का बदला जो होता है ना, जो जिसका हक हो आप उसको दे दे, उसे अदल कहते हैं। हम पूरी कोशिश के बावजूद अदल भी नहीं कर सकते, लेकिन रब कहता है वबिल वालिदैन एहसान। अदल का दर्जा तो एहसान, एहसान का दर्जा तो अदल से आगे होता है। और जो नबवी मुआशरा था, उसकी जो बुनियाद थी, उसमें अदल मिनिमम लेवल था, दरमियानी लेवल एहसान था, और सबसे बड़ा लेवल यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो ईसार था। तो जब हम जिस सोसाइटी में अदल ही ना रहे, तो वहाँ एहसान और फिर ईसार की मिसालें कहाँ से? वो फिर मुझे शेर याद आ रहा है, सब इजाजत है। वकार यज़्दा साबित करते हैं, वकार यज़्दा हुस्न इंसान ज़मीर आलम बदल गया, कहीं मशीयत पे नींद तारी, कहीं मईशत तड़प रही। मुझे यकीन है कि इस जहां में जरूर फिरौन जी उठा है, कदम कदम पर खुदाए बरतर तेरी फजीलत तड़प रही। कभी शबिस्तान के रहने वालों, गरीब की झोंपड़ी भी देखो, खजां के पत्तों की झांझनों में किसी की अस्मत तड़प रही। और फिर एक और मुझे याद आ गया, हाकिम शहर की उस बंद गली के पीछे मैंने एक शख्स को खून उगलते हुए देखा। तुम तो कहते थे कि होते हैं दरिंदे जालिम, मैंने इंसान को इंसान निगलते देखा। ये उस वक्त होता है जब रूह की जरूरतें पूरी न की जाए, रूह के तकाज़े पूरे न किए जाए। फिर एहसान को आगे उसकी वजाहत करती हैं, एहसान वालों का तज़किरा। अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। यानी एहसान एक ऐसा अमल है जो इंसान को महबूबियत के दर्जे पर ले जाता है। फिर अपने बाहम जो है एहसान करने का हुक्म है, वह अहसन कमा अहसनल्लाहु इलैक, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उनको कहा था। हुकूकुल इबाद में एहसान है, यानी एहसान का लफ्ज आपने इतना इस्तेमाल किया है, ये बात बड़ी दिलचस्प है कि इदफा बिल्लती ही अहसन, कि अगर किसी से जंग हो जाए, तो मुजादला हो जाए, उसको अच्छे ज्यादा हुस्न वाले तरीके से अपने से दूर करो। किसी के साथ गुफ्तगू करनी पड़े, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। और ये भी रब ने फरमाया, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, हुस्न वाला अमल और हुस्न से घिरा हुआ अमल बराबर नहीं हो सकता। और फिर इस हद तक कहा कि जो रिश्ता है मियां बीवी का रिश्ता, वो क्या है, वो एक निकाह के रिश्ते में जुड़े होते हैं। अगर ये रिश्ता टूट जाए तो रब फरमाता है फइमसाकुम बिल मारूफ और तसरीहुम बिल ihsan, या तो इज्जत के साथ रोक लो, अगर नहीं चल सकते तो इंसान के साथ उसे तजलील न करो। यहाँ तक कि कत्ल जैसे मामले में भी हुक्म दिया है कि एहसान, लड़ते हुए मैदान जंग में एहसान की रविश को अपने पेश नजर रखना है। और जानवर को ज़िबा करते हुए आपने हुक्म दिया, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शै, एहसान अल्लाह ने हर चीज पर फर्ज किया है। इसलिए जब तुम किसी चीज को ज़िबा करने लगो तो हुस्न वाले तरीके से ज़िबा करो। तो ये कुछ चीजें हैं। इसी तरह दुनिया से बिल्कुल बेरगबत हो जाना, ये एक आमतौर पर दिलचस्प फिनोमेना है जो कि रहबानियत सिखाते, सूफी रहबानियत नहीं सिखाते। मर्द मैदान होते हैं, मैदान में बैठते हैं, दर के दुनिया और घर के दुनिया के माबैन जो है ताअम्मुल, इसे तसव्वुफ कहते हैं। और खौफ और उम्मीद के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना तसव्वुफ है, क्योंकि उम्मीद, खाली उम्मीद खुद सरबराती है और खौफ बेदस्त वफा करता है। पहली सूरत में गफलत और दूसरी सूरत में रहबानियत शामिल है। इसमें एक आर्टिकल बड़ा ही शानदार है नौजवानों के लिए, ये प्रोफेसर मोहम्मद जमील कलंदर साहब का है। वो कहते हैं कि इंसान अशिया के हकायक तक नहीं पहुंच सकता, कांट को उन्होंने नोट किया है। उसका मबलग इल्म अशिया के ज़वाहिर तक महदूद है। और जबकि अल्लाह ने जो बयान किया, वाल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा,
चार चीजें उन्होंने बयान की कि एक है इम्कान, एक है वकूअ, एक है वजूब नेसेसिटी और एक है एहतिमाल प्रोबेबिलिटी। चारों दायरे जो है अल्लामा आदम अलैहिस्सलाम के अंदर शामिल है। और फिर इतनी वसअत दे दी है, आप देखें, और हकीकत तक पहुंचना इतना पसंदीदा है कि दुआ सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा अरिना अल-अशिया कमा हिया, हमें चीजों का उस तरह मुशाहिदा करना जिस तरह वो हैं। और अंबिया में ये जस्तजू रखी कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अन्ना युहयिल्लाहु हाज़िही, अल्लाह इस मरे हुए जानवर को कैसे जिंदा करेगा। उन्हें तजर्बा कराया, 100 साल लिटा दिया, उनके खाने को तरोताजा रखा, उनकी सवारी की हड्डियां भी खाक में मिल गई, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की और अर्ज करने लगे, या अल्लाह रब्बी अरिनी कैफ़ तुहिल मौता, चार परिंदों को ज़िबा करवाया, गोश्त मिक्स करवाया, बुलंदी पर रखवाया, फिर बुलाया, फिर वो वजूद कैसे बने, पूरा एक लेबोरेटरी के तरीकेकार के मुताबिक हमने दिखाया। फिर खुद मूसा अलैहिस्सलाम देखिए हकीकत तक पहुंचने की जो रब्बे आरिनी अंजुरी ले। और फिर ये मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराई तो फरमाया लक़द रहा मिन आयात रब्बिल कुबरा, अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी और रब की जात का दीदार किया कि सांस से माज़ा अल बसर व मा। तो वो कहते हैं कि अमेरिका की बड़ी लाइब्रेरी जो है वो एक ऐसे मिनी डिस्क में समो दी गई है जिसे नाखन पर रखा जा सकता है। तो वो रब जो उन कहकर कायनात तख्लीक कर सकता है, जब उसने वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा कहा होगा तो उसके अंदर फिर क्या क्या रखा होगा। और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में जब फरमाया वअल्लम मा लम तकुन तालम, अल्लाह ने इसी तरफ इशारा किया, लहू भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। इसी तरह एक तीसरा मकाला है, मैं बिल्कुल एंड की तरफ जाने लगा हूँ। ये डॉक्टर मोहम्मद शकील औज का है, इन्हें शहीद कर दिया गया था, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में डीन भी थे, तो बहुत लायक आदमी थे, जीनियस आदमी। और हमारे यहाँ तो ज़ियानतों से खौफज़दा क़यादतें मौजूद हैं, इसलिए किसी की ज़ियानत और किसी की काबिलियत हज़म नहीं होती और उसे हर आजमाइश से गुजरना पड़ता है जिसके अंदर अल्लाह ने कुछ लियाकत रखी। ये किला कशी के जवाब के हवाले से सूफिया जो किला कशी करते हैं, कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रातें भी गुजारी, अल्लाह ने कहा 30 की, फिर 10 का इजाफा कर दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम 3 दिन जो है वो खामोश रहने का उन्हें हुक्म दिया गया है कि मुझे ऐसे से गुजरे। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद जो है वो आपको पता है 40 दिन महीना महीना गारे हिरा में रहते थे। बैत के फसख करने का हुक्म भी बयान किया है कि अगर मुर्शिद 2 नंबर है तो फिर उसकी बैत को तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, शरीयत मुकद्दम है, बाकी सारी चीजें जो है वो एक तरफ। इसी तरह इनके बाद प्रोफेसर मंजूर सियालवी का है, ये इंसान दो चीजों पर मुरतब है, जिस्मानी और रूहानी अमराज, और जिस्मानी और रूहानी अमराज के असरात बयान की हैं और आयात बयान की हैं। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, खिले हुए चेहरे होंगे जो रब को देख रहे होंगे, और कुछ वो चेहरे होंगे जिनके ऊपर गुबार उड़ रहा होगा, जिल्लत और रुसवाई। इसी तरीके से इन्होंने शरीयत और तरीका, तसव्वुफ, सूफी एक हमारी हर शख्सियत होती है, दुनिया की मिसाल बयान की कि पानी कश्ती जिस तरह पानी में होती है, पानी के ऊपर कश्ती चलती है, पानी को कश्ती में नहीं आने देना चाहिए, ये मिसाल दुनिया की इन्होंने दी है अच्छे तरीके से। और इसके बाद एक बड़ा ही खूबसूरत मकाला डॉक्टर तैयब रज़ा बुखारी का है, उन्होंने रूटीन की चीजें बयान की, तसव्वुफ की जो राय, जो गलत जो इस्तिलाहें हैं, तवीज़ गंडे को तसव्वुफ समझना, झाड़ फूंक को तसव्वुफ समझना, पीर साहब बख्शिश करा देंगे, ये सारे जो गलत रस्म रिवाज है उस पर इन्होंने नक़द किया और अच्छा लिखा। आखिरी बात अब मैं करने लगा हूँ, ये तसद्दुक़ हुसैन राजा है, डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन राजा, ये डायरेक्टर रिटायर्ड है दारुल तर्जुमा मुक़्तदरा कौमी ज़बान इस्लामाबाद। इन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, उसके अंदर सिर्फ एक ही इनका कौल जो है वो पेश करने लगा हूँ, जो इमाम गज़ाली का कौल है नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए। इबारत मुसलसल है, उसके दरमियान से मैं पढ़ने लगा हूँ। अन्नी अलिम तो यकीनन अन्ना सूफियत हुमुस सालिहून बितरीक़िल्लाह खासा। गज़ाली ने जो जामे बगदाद की वैसना शिप छोड़ी और फिर
जबल में रहे और 11-12 साल का अरसा है, जिसके बाद ये और उलूम आई। तो फिर अल-मुनक़िज़ मिन दलाल उन्होंने अपना सारा सफ़र बयान किया कि मैं किस तरह फ़लसफ़े से, इल्म से, फ़िक़्ह की सारी बातों से निकल कर इत्मीनान की मंज़िल तक कैसे पहुँचा, वो तजुर्बा उन्होंने शेयर किया है अल-मुनक़िज़ मिन दलाल। वो कहते हैं कि मैं यकीनी हद तक ये बात जान गया हूँ कि सूफिया 2 नंबर में, 1 नंबर सूफिया ओरिजिनल लोग जो है, ये हकीकत में यही वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के रास्ते पर खालिसतन चलने वाले हैं। व अन्ना सीरतहुम अहसनु सीरत, इनकी सीरत सबसे ज़्यादा हुस्न वाली सीरत है। व तरीक़हुम अस्वबु तुरुक, और इनका तरीका सबसे सही तरीका है। व अखलाक़हुम अज़कल अखलाक़, और इनके अखलाक़ सबसे ज़्यादा पाकीज़ा अखलाक़ हैं। वल्लौ जो में अक़लुल उक़ला, ये बड़ा खूबसूरत जुमला है। ग़ज़ाली फरमाते हैं कि अगर अहले अक़ल की अक़लें इकट्ठी की जाएँ, व हिकमतुल हुकमा, अहले दानिश, अहले फ़लसफ़े इकट्ठे किए जाएँ, व इल्मुल वाक़िफ़ीन अला असरार शरअ मिनल उलमा, और असरार शरीयत का इल्म रखने वाले उलमा का इल्म इकट्ठा किया जाए, और सबको इकट्ठा करके ये सारे मिल जाएं और वो चाहें लियुग़य्यिरू शयअन मिन सियरिहिम व अख़लाक़िहिम, कि वो किसी कामिल सूफी की सीरत और अखलाक में कोई तब्दीली ला सके, सारे मिलकर। व युबद्दिलूहु, या उसे बदल दे, बिमा हुवा खैरुम मिन्हु, जो इससे बेहतर हो। लम यजिदू इलैहि सबीला, वो इसकी हिम्मत नहीं कर सकते। क्यों? फ़इन्ना जमीअ हरकातिहिम व सकनातिहिम फ़ी ज़ाहिरिहिम व बातिनिहिम मुक़्तबसतुम मिन नूर मिशकातिन नबुव्वा, कि इनका ज़ाहिर और बातिन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर और बातिन से खैरात लेता है। व लैसा वराअ नूरिन नबुव्वति अला वजहिल अर्ज़ि नूरुन युस्तदाअ बिही, और रूए ज़मीन पर नूर नबुव्वत से बेहतर कोई नूर नहीं है कि जिससे कस्ब फैज़ किया जा सके। खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। मैं आखिर में शुक्रगुज़ार डॉक्टर हारून उस्मानी साहब को दोबारा, और शाहरेख खान साहब को और इनकी टीम का, अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक बख्शे। बहुत शुक्रिया। इस किताब की पीडीएफ इंशाअल्लाह मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इनलाइटनिंग टॉक के लिए, कि जिस तरह से आपने उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि तसव्वुफ़ कैसे तहर्रुक से रिलेटेड है। सर मेरा जो सवाल है वो एक ख़याल पे मबनी है। मैं पहले ये बात कर दूँ कि एक सूफ़ी को या एक सालिक को ये दावा है कि उसे खुदा से मोहब्बत है, वो उसकी तलाश में है। तो इस दावे को या इस एक जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए खुदा की सबसे खूबसूरत तख्लीक या उसके जो तजल्लियात का मम्मा है वो इंसान का दिल है। तो यानी वो एक उसके ही साथ बसने वाले जो इंसान है, तो वो उनसे लाताल्लुक़ नहीं हो सकता। यानी जब वो माशरे में दिखता है कि उसी इंसान की तस्वीर हो रही है या वही इंसान है जिस पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उस इंसान से कनेक्ट होना की ज़रूरत महसूस होती है। तो आपने बताया भी कि किस तरह से गर्क दुनिया तर्क दुनिया के दरमियान एक सूफी का होना ज़रूरी है, और वो किस तरह से एक हमजहत शख्सियत होती है। सर एक तरफ तो ये ख्याल है, और दूसरी तरफ जब हम 21वीं सदी में देखते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे भी और ग्लोबल लिटरेचर में भी ये नज़र आता है कि सूफीज़म को प्रमोट बहुत किया जाता है मिस्टिसिज्म के नाम पे, और मुख्तलिफ नॉवेल्स लिटरेचर भी इसके मौजूद है। ये सब होते हुए भी हम नताइज नहीं देख रहे हैं उस तरह से कि वो उस इंसान की खिदमत के लिए या उस इंसानियत के सेंटर में ओरिएंटेड कोई नतीजा उस तरह से निकल रहा हो। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए तसव्वुफ की तरफ हमारी, कि हम उसको ये देखें कि अगर उसे खुदा की तलाश पर मबनी अगर वो एक डिस्कोर्स की बात कर रहा है, तो वो उस इंसानियत के लिए नताइज थे। क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे भी, पॉलिटिक्स में भी हम ये देख रहे हैं कि सूफीज़म को एक मिनिमलिस्ट थ्रेट कंसीडर किया जाता है, और गवर्नमेंट्स उसको या जितनी भी आप देख लें कि ये ठीक है, समझ आ रही। बड़ा अहम सवाल है और प्रैक्टिकल सवाल है, जो इंग्लिश के हवाले से डॉक्टर साहब ने किया था, उर्दू में आपने कर दिया। वे और रास्ता क्या होना चाहिए? देखिए तसव्वुफ हकीकत है, जब तक इंसान के जिस्म में रूह मौजूद है तसव्वुफ का इनकार नहीं किया जा सकता। ये ज़रूरत है रूह की, और रूह की तस्कीन इसी से मिल सकती है। बाकी मैंने तो खुद एक खानकाह में मैं पढ़ा हूँ,
प्रैक्टिकल सूफी हमने देखे हैं, अब भी मौजूद है। जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह गजरी, कौन नहीं जानता, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, इदारे के सरबराह हैं, सीरत निगार हैं, मुफस्सिर हैं, जिनकी किताबें लाइब्रेरी में भी मौजूद हैं, और साथ शेख कमल भी हैं। हमने तो देखा है प्रैक्टिकल, इस तरह के और लोग भी देखे हैं। एक तो ये है कि जुस्तजू का जो जज्बा है ना, वो मांग पड़ गया है, और हम चाहते हैं कि इस तरह बच्चों के ट्यूशन के लिए ट्यूटर घर में आ जाए, तो मुर्शिद भी ऐसा हो कि जिसको फीस भी और घर पे आ जाए। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तलाश करना पड़ेगा और मिल जाएगा, और लोग मिल जाते हैं, और शाहजेब खान साहब इसकी गवाही देंगे, ऐसा नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, देखिए जो जवाल होता है ना, जवाल बेटा सैलाब की तरह होता है, उसकी जद में नशेब भी आते हैं, फराज भी आते हैं, दौरे जवाल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका हल कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ जितनी भी तसव्वुफ की जो एक मसलक नशीनी थी, वो वरासत में बदल गई, ये नुकसान हुआ। अब ये आप शुक्र है कि ये गुफ्तगू हुई, इससे इसके असरार दूर दूर तक जाएंगे और महसूस किए जाएंगे। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अगर हम हुकूमती सतह तक अप्रोच करें और औकाफ मुतहर्रिक को जितनी खानकाहें हैं, कम अज़ कम उनके सजादा नशीनों के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज किए जाएं, कम अज़ कम उनकी तरबियत के सेशंस किए जाए कि उनके पास अगर मखलूक खुदा में से कोई परेशान हाल आता है तो उसको डील कैसे करना है। तो अगर ये किया जाए और ये तालीमात देखें, बेहतरीन मॉडल जो है हमारी सोसाइटी में बड़े सगीर में वो सूफिया का है, बकाए बनी का, इसके अलावा कोई मॉडल नहीं है। वरना तो जैसे जैसे खानकाही सिस्टम कमजोर हुआ है, आप देख लें, फतवा, दहशतगर्दी, मसाजिद पर कब्जा, और तौहीद वाला इश्क़ रसूल वाले के खिलाफ मोर्चा जन है, सियापा वाला अहले बैत वाले के खिलाफ। सूफी हमेशा सोसाइटी में तवाज़ुन पैदा करता है, और वो बताता है कि ये जितने भी मसालिक हैं, इनकी खूबियां इकट्ठी करें तो इस्लाम बनता है। वो किसी एक तरफ आपको भी धकेलता, कान से निकालता है। तो मेरा ख्याल है इस तरह के जब सेशन होंगे और हुकूमत सिर्फ मफाद हासिल करने के लिए मिस्टिसिज्म है उसको प्रमोट करने की बजाय स्पिरिचुअलिज्म को जब तक प्रमोट नहीं किया जाएगा और हक़ाइक़ सामने नहीं आएंगे, उस वक्त तक मामला बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर मेरा ताल्लुक दिल्ली बल्तिस्तान से है सर, और दिल्ली बल्तिस्तान से आगे अपलू गांधी से मेरा ताल्लुक है सर। वहाँ पे एक सेक्ट है जिसका नाम नूरबख्शिया है, और मैं खुद भी इसका फॉलोअर हूँ सर। उनका जो तर्ज अमल है पूरा प्योरली सूफीज़म पे है सर। तो मेरा एक सवाल ये है कि वहाँ पे बहुत से खनका भी हैं, और प्लस दूर जो वैली से दूर उन्होंने मसाजिद बनाए हुए हैं, और साल में 1 या 2 दफ़ा वो लोग 40 दिन के या 2 महीने के लिए चिला करते हैं, और बुजुर्ग जो टाइप्स होते हैं और जो प्योर जो फार्मर्स होते हैं, तो वो तरह की दुनिया करके सर दुनिया से बिल्कुल गायब होकर वहाँ पे जाकर चिला करते हैं। तो चिला काटने के बाद जब वापस आते हैं तो उनके सोशल जो लाइफ है वो काफ़ी इफेक्ट होते हैं सर। तो अभी जो सदी चल रही है उसमें सोशलाइजेशन एक डिमांड है जिसके बगैर आगे इस दुनिया में आगे चल नहीं सकते। तो एज स्टूडेंट्स हम अभी डबल माइंडेड हो रहे हैं कि अगर हम सूफीज़म के ऊपर चल रहे हैं तो तर्क दुनिया करना पड़ रहा है। बाकी इधर इस साइड में देखें तो ये सोशलाइजेशन बहुत बढ़िया सवाल आपको समझ आ गया। मैंने तो अर्ज किया तर्क दुनिया तो है ही नहीं, तसव्वुफ को किसने कहा तर्क दुनिया है? हाँ, जिस तरह एक मेडिकल में डॉक्टर एक ट्रेनिंग हासिल करता है, इंजीनियर एक पूरा कोर्स करता है, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या बाकी सब्जेक्ट्स में आप एक मुकर्रर मुद्दत में पढ़ते हैं, उसके बाद आपकी ड्यूटी लगती है। इतना तो होना चाहिए ना कि जो स्पिरिचुअलिज्म में जाना चाहता है, उस मसनद पर बैठना चाहता है, वो भी इस ट्रेनिंग से गुजर कर आए। जब ट्रेनिंग मुकम्मल होती है, आप देख ले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की ट्रेनिंग मुकम्मल हुई तो मैदान में बैठे, और राजपूताना उसकी जो राज तिहानी थी उसके अंदर वो बैठे, दाता साहब शहर के अंदर बैठे। उन्होंने जंगल को भी मंगल बनाया है, लेकिन बड़ी बड़ी आप बड़े शरीर पे देखें, जब कोई अपोजिशन नहीं होती थी, ऐसे भी बादशाह आए जिनके सामने कोई बोलता नहीं था, उनके सामने अपोजिशन का किरदार सूफिया अदा करते थे। हज्जाज इब्न यूसुफ के सामने कोई नहीं बोलता था, मरवा देता था, उनके सामने मजबूत अपोजिशन ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। तो ऐसा नहीं है, एक खास ट्रेनिंग के बाद तरबियत और तज़किया के बाद जो है फिर मैदान में बिठाया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है
जैसे एक रंग रूप भर्ती होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद उसे छावनी में और फिर महाज पर भेजा जाता है। अनाड़ी को अगर आप महाज पर भेजेंगे, वो तो अपनी भी जान गंवाएगा और दूसरों की भी जान के ज़ाहिर होने का सबब बनेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया कि आपने कम टाइम में अच्छे तरीके से समझा। सर मेरा सवाल बेसिकली ये है कि जो रहमानियत है और सूफी है, एक उनमें सर हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंट कैसे कह सकते हैं? अब रहमानियत जो है वो तो सोशलिस्ट मतलब है कि सोशल नहीं है, अब उनको और जो सूफी है उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? और सर दूसरी बात इनमें ये है कि सर अगर एक सूफी है तो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं तो वो तो उन चीज़ों को नहीं देखते कि वो अच्छा है या बुरा, क्योंकि वो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो उनमें हम अच्छा कैसे देखेंगे कि वो अच्छा सूफी है? देखिए ना, इसमें दो सवाल है। रब्बानियत वाला एक पहलू, अल्लामा का बड़ा एक खूबसूरत कथा है जो नाम निहात तसव्वुफ है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, उसमें जवाब भी है। सूफी की तरीकत में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार, शायर की नवा मुर्दा अफसुर्दा बेज़ौक़, अफकार में सरमस्त न खाबीदा न बेदार, वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, वो जिसके रगों पै में फ़कत मस्ती किरदार। मस्ती किरदार जरूरी है, ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी खानगाहें मौजूद हैं जो काम करने वाले हैं, रब्बानियत का दर्स नहीं देते। और जो दूसरा सवाल था वो क्या था आपका पॉइंट? सर उसमें ये कि जो उनके कोई सूफी होता है उनको फॉलो ब्लाइंडली फॉलो, हाँ, ब्लाइंडली शरीयत इसमें सूफी वो होता है, हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जिसके दाएं हाथ में कुरान और बाएं हाथ में सुन्नत। जो शरीयत से चीज गिर जाए वो हुज्जत है ही नहीं। तरीकत खादिम है शरीयत, शरीयत बुनियाद है। ये ऐसे है, रूह होगी तो आगे मंजिल तय करेंगे ना, रूह ही नहीं है तो शरीयत बुनियाद है। शरीयत के बगैर ना तरीकत है ना हकीकत है। और हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी सामने है, लेकिन असाब सुफा से एक तसव्वुर बारा तसव्वुफ का मौजूद है, तज़किया का। ऐसे लोग थे जो आते थे। जो एक और पहलू आपको था, सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, इसकी तो गुंजाइश शरीयत वैसे भी नहीं देती कि एक शादीशुदा बंदा अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के उस जिम्मेदारी से राह फरार अख्तियार करे। ये न शरीयत में जायज़ है ना तसव्वुफ में जायज़ है। ठीक है, ये बात हकीकत है और इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सारी चीज़ों को जैसे आप अपनी दुनियावी चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो इसी तरह रूह के तकाज़ुल को भी मैनेज करने के लिए अगर आप वक्त मुकर्रर करते हैं, किसी काबिल के पास बैठते हैं, कुछ सीखते हैं, तो वो ज़रूरी है, उस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। मुझे पता है कि क्वेश्चन अभी भी हैं, लेकिन वही मजबूरी हमारी